Welcome to my channel CA Gayatri Academy, and today we are going to discuss about Ind AS 8, which is accounting policies, changes in accounting estimates and errors. Let's very important topic, and let's start off with this topic. Okay, what are the objectives of doing this Ind AS? The objectives are prescribing the criteria for selection and application of accounting policies. So it prescribes the criteria for selection and application of the accounting policies in the preparation of the financial statements by the companies, organizations. Okay. Second, it is dealing with the changes in accounting estimates, right, and corrections of prior period errors. If any prior period errors have been done, so it can be corrected here. And also it deals with the changes in accounting estimates, right? And what is aims to do? It aims to enhance the relevance and reliability of financial statements. So what happens by following this Ind AS 8, we aim to enhance the relevance and reliability of the financial statements and also the comparability, right? What are the scope applicable to all the entities preparing financial statements under Ind AS? Covers selection and application of accounting policies. Okay, which accounting policy need to be followed, that has to be first selected and then it have to be applied. Okay, and includes accounting for change in estimates if any estimate changes. Okay, and if the correction of prior period errors are there, prior period, if some errors have been found in the prior periods which have been seen in this current year, those have to be accounted for. How that correction can be done, that we will do with the help of Ind AS 8. So first let's do some definitions, okay, which we are very important in this accounting policy. What is saying? Accounting policy principles are methods. So what are accounting policies? Principles and methods used in preparing financial statements. So those methods and those principles used in the preparation of financial statements are known as accounting policies. Simply, principles and methods of preparing the financial statements. What are accounting estimates? Adjustments based on latest information and experience. Okay, we need to do some estimation of some amounts, and that can be done based on adjustments, right? Based on what? Based on the latest information and experience. Okay, then prior period errors. What are they? Omissions or misstatements from failure to use relevant and reliable data. Okay, if we have some data with us and that was reliable, okay, we rely on that data, but we prepared the financial statements in which it was left over, some were mistake due to mistake or some were due to oversight, right? So those are prior period errors. Then there are the words coming: retrospective effect and prospective effect. We will see in this may widely used. Retrospective effect means what? जब कोई चेंज हम करते हैं, राइट, जस्ट सिंपली समझिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट माने अगर कोई चेंज आ रहा है उस चेंज को उसमें तो देना ही, करंट पीरियड में उसका इफेक्ट देना ही, साथ में हिस्टोरिकल पीरियड मतलब आगे के पीरियड में भी उसका चेंज दिखाना है हमें, और इवन फ्यूचर. सो हिस्टोरिकल पीरियड, करंट पीरियड एंड फ्यूचर, these three will have effect, that is retrospective effect. Okay, so let's see what they're saying. Retrospective change means that the change need to be accounted for in the historical period as well the current and the future periods. Example ले लेते हैं. If the company change accounting principles that requires retrospective effect in the case any prior period has been included in the current financial year statements, it to be updated. कोई prior period का statements है तो उसको हमें updation करने, कैसे हमें उसे change करने, ठीक है, and have to be presented consistent with a new accounting principle. So हम अगर historical period maybe for this year 2025-26 we are taking account for 24-25, okay, तो उसमें prior period 23-24 का भी accounts था, तो हमें 23-24 को भी effect देना है. We have to update the financial statements according to the new policy accepted, right, so that it is consistently followed in the 3 years, right. Then we have prospective effect. अब what means prospective? Prospective मतलब historical base को हम consider नहीं करेंगे, आगे जो था that was different. Prospective means for the current year and the futures, right? So prospective effect refers to applying the change or adjustment to the financial statements in the current and future periods without reinstating or changing previously issued financial statements. अभी जो हमने केस किया उसमें 23-24 को हमने चेंज किया था when it was retrospective, right? But when we see that it is not retrospective, right? So we have to give the prospective effect. Prospective effect मतलब कि जिस दिन हुआ है चेंज तब से लेके date of change to further periods also and this change also, but not in the
फ्यूचर पास्ट पीरियड इफेक्ट नीड नॉट बी गिवन। तो 2024 का जो केसेस को हमें देखने नहीं है, हमें 24, 25, 26 मैंने फर्दर फ्यूचर के लिए हम ऑब्वियसली देंगे इफेक्ट, बट नॉट इन द हिस्टोरिकल पीरियड. So accounting policies, change in accounting policies, how they have to be decided, they are chosen based on the relevance and reliability. Particular case में कितना वो relevance है, कितना reliable है, should be applied consistently across similar transactions. और जो similar transactions उनको consistently हमें follow करते रहने हैं. Okay, change only if required by any Ind AS. कोई भी अगर Ind AS बोल रहा है किसी लाना है तो हमें ऑब्वियसली चेंज करना, और रिजल्ट्स इन मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल डाटा. और अगर कोई भी डाटा हमें मिला है एट प्रेजेंट जिसके बेसिस में हमें लग रहा है कि इस इसको हमें यूज़ करने हैं, इस अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज़ करने हैं, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, बेस्ड ऑन दैट मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल डाटा, देन इट हैज़ टू बी चेंज्ड. और if any Ind AS requires it directly to change of the policy for a particular transaction. So in that cases, accounting policies, how they are selected and why they are selected, and they have to be followed consistently across similar transactions, right? Then we have change in accounting policy, retrospective application. जब accounting policy हम change करेंगे हमें always retrospective application देना है, unless and otherwise it is impracticable, जो बनाने के लिए संभव नहीं है. छोड़िए, for example हम पकड़ते हैं हमारा कोई business था, it started from 2010, 2020 तक हम उसको retrospective effect दे नहीं सकते. No accounts are maintained, we are not able to make the change there. So from 2020 onwards the data are with us, the accounts can be changed for this particular business. So 2021, 21, 22, 2024 सब तीनों साल में हम दे सकते, it is practicable. So we will give the retrospective application or effect to the change in the policy in the financial statements. But आगे के साल से business था 2010 to 20 तक हम उसको नहीं दे सकें because it is impracticable. Second, adjustment कैसे हम करेंगे, comparative figures जो है उनको adjust करेंगे and opening balance of the assets liabilities so इक्विटीज ऑल. तो हम क्या करना है, हमें कंपेरेटिव फिगर्स को एडजस्ट करने और ओपनिंग बैलेंस को चेंज करने, राइट. डिस्क्लोजर क्या देंगे, नेचर, रीजन एंड इफेक्ट ऑफ चेंज. नेचर ऑफ चेंज क्या है वो देना है, मेंशन करना है रीजन वाई वी हैव टेकन, वेदर एनी Ind AS आस्किंग और वेदर द डाटा विच इज अवेलेबल नाउ इज मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल टू मेक द चेंज, एंड ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ चेंज. ये चेंज हम ला रहे हैं इसमें क्या इफेक्ट आ सकता है. सो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का ऐसे डिस्क्लोजर करना है. सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे हो सकता है, इफ़ स्पेसिफिक Ind AS इसके लिए नहीं है, पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन है, टाइप है, इवेंट है, वॉट एवर कंडीशन कुछ भी है जिसके लिए Ind AS कुछ बोल नहीं रहे, तब हम क्या करेंगे, देन जजमेंट विल हैव टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट. ओके, let's see what they are saying. When a specific Ind AS is not present, this specifically applies to one transaction or other events or conditions, then the management, okay, should use its judgment. It depending in developing and applying an accounting policy that results the information is relevant. ठीक है, किसको relevant, to the economic decision making of the users जो इसको accounts financial statements को यूज़ करेंगे उनके लिए कितना relevant है, उनके economic decision making में कितना वो यूज़ आएगा, that is called relevancy. Second, reliable in the financial statements, faithfully represent the financial position. बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो फेथफुली रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पूरे साल में वो दिखाएगा, कैश फ्लो क्या है वो भी दिखा सकता है परफेक्टली. सेकेंड, रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक सब्सटेंस ओवर फॉर्म. हम ऑलवेज बात करते हैं सब्सटेंस, द इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट देन द मेनली द लीगल फॉर्म ऑफ द ट्रांजैक्शन. वो न्यूट्रल है, फ्री फ्रॉम बायस, दे आर प्रूडेंट एंड कंप्लीट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, तो वो रिलायबल हो गया फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, सो दो केस मैनेजमेंट कंसिडरेशन करेगा, एक है रेलेवेंसी, एक है रिलायबिलिटी. ओके, डिपेंडिंग ऑल दीज फैक्टर्स टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी व्हेन specific Ind AS is not stated for that particular transaction, condition or event, right? Hope this is clear. Then we go to change in accounting estimates. What is accounting estimates? First of all, whenever we are doing an accounts, some cases we don't have the exact amount. In that values we have to estimate, make estimation of those values. Okay, तो हम क्या करेंगे, उसका change हमें क्या देना है, we have to recognize the change from the date of change. Okay, so here comes the case of prospective effect. Recognize prospectively from the date of change. Okay, क्या क्या चीज़ आते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट फर्स्ट. Second, provision for doubtful debts.
डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हम जो प्रोविजन क्रिएट किए हैं. इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है हमारा, ऑब्सोलेसेंस आउट ऑफ ऑर्डर, राइट. हमने स्टॉक खरीद के रखे 5 साल के, राइट. आफ्टर 2 years वी सी अ न्यू चेंज हैज कम ड्यू टू द एडवांसमेंट इन साइंस, मेनी न्यू मशीन्स कम अप, जिसके लिए हमारे पास जो स्टॉक था पहले दैट कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर इन मैन्युफैक्चरिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो इट विल बिकम इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस विल बिकम, so life will change, right. Change in fair value of financial assets and liability, financial liabilities, okay. Change in warranty obligations, so all these changes are considered under accounting estimates, right. Change in accounting estimates, इसका डिस्क्लोजर कैसे करना पड़ेगा, नेचर एंड अमाउंट ऑफ द चेंज ऑफ मटेरियल, कोई अगर मटेरियल है उसका नेचर क्या है, उसका अमाउंट क्या है, वो हमें देखना है इन द करंट पीरियड एज वेल एज इन इफेक्ट्स इन द फ्यूचर पीरियड्स. प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट होगा आज के टाइम में डेट ऑफ चेंज से लेके फ्यूचर में, ठीक है. इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द इफेक्ट्स ऑन फ्यूचर, लेकिन कभी किसी हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इन दैट केस फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज दैट उसका हम प्रैक्टिकली उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा उस एस्टिमेट का, तो हम ले नहीं सक रहे, दैट फैक्ट हैज़ टू बी डिस्क्लोज्ड इन द financial statements, okay. So disclosure करना nature and amount of change if material, current period as well as futures, and if it is not practicable to estimate in the future amount, then in that case it has the fact that it cannot be disclosed has to be stated in the financial statements. When do an estimate need to be revised? अब estimate को revise करना क्या क्यों पड़ेगा? An estimate may be revised in cases, ठीक है, कब करना पड़ेगा? If there is a change regarding the circumstances in which the estimate was based, कोई एक particular circumstance के बेसिस में हमने estimate लिया था, वो circumstance ही change हो गया, तो in that case what happened? Circumstances change, the estimate need to be changed. Maybe for example the cost of petrol, right? इसके बेसिक में हमने हमारे मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्चा होगा, हम मे बी हम यूजिंग पेट्रोल एंड फॉर आवर मशीन्स टू रन, राइट, और फॉर व्हीकल इंडस्ट्री वॉट एवर इट इज़, सो वी से द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट. तब प्राइस कम था, हमने एस्टिमेशन उस बेसिस में किया था, प्राइस बढ़ चुका है, वी हैव टू बेस द एस्टिमेट ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, राइट, एट प्रेजेंट. तो सर्कमस्टेंस चेंज हो गए, ओके. अब सर्कमस्टेंस चेंज होने एस्टिमेशन भी चेंज करने पड़ेंगे, दैट इज़ वन रीजन. सेकेंड, क्यों, इफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, मोर एक्सपीरियंस और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हैव कम विद रिजल्ट्स इन द रिविजन, कुछ नए डेवलपमेंट्स आए हैं मॉडर्न वर्ल्ड में जिसको हमें इनकलकेट करने पड़ेंगे, मतलब हमें इसको यूज़ में लाने पड़ेंगे. पर सब्सिक्वेंट कोई डेवलपमेंट हुआ है, हमने जब एस्टिमेट किया तो उसके बाद कोई नया डेवलपमेंट आया है, कोई नया एडवांसमेंट आया, तो उसको लेने के लिए एस्टिमेशन भी चेंज करने हैं. तो दीज आर द टू केसेस when the circumstances change based on which the estimation was taken that time, or when some new developments have come up or some advancements have made led to the revision of the new estimate, okay. Then the third part is what are prior period errors, okay. Prior period errors are the errors which are committed in the earlier years but discovered in the current period. प्रायर पीरियड एरर्स बोलते कोई भी एरर जो हमने कमिट किया है कब, प्रायर पीरियड में, बट अभी उसको हमने निकाला है ढूंढ के, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय अस इन द करंट ईयर. दिस हैपेंड व्हेन फेलियर टू यूज और मिसयूज ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन, उसको हमने यूज़ किया और मिसयूज़ किया. कैसे? दैट वाज अवेलेबल, द इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट द टाइम, हमने उसको आइदर ओवरसाइट किया, उसको हमने फ्रॉडली चेंज किया, या हमने उसको ओवरलुक किया, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि उसको हमने इन्फॉर्मेशन ठीक से कैरी ओवर नहीं किया, और कुड रीजनेबली एक्सपेक्ट टू हैव बीन ऑब्टेन्ड, ओके. जो इन्फॉर्मेशन तब प्रेजेंट था और जहाँ से परफेक्ट और करेक्ट हम डाटा ले सकते थे, लेकिन हमने गलती से या जानबूझ के या किसी भी एक रीज़न के लिए मैथमेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, वो एरर वहाँ पे किया था, बट द एरर वाज देयर ड्यू टू some mistake on our part, but the data present was reliable and could have been obtained if we wanted to obtain it, right. So उसका दो रीज़न है, डाटा तब प्रेजेंट था, इट वॉज प्रेजेंट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस में हमने प्रायर पीरियड एरर किए थे, ओके. डाटा था, डाटा ऑब्टेन भी किया जा सकता था, लेकिन उसको हमने आइदर मिस्टेक से या फ्रॉडली और ओवरसाइट से उसको हमने छोड़ दिया, मिस किया लास्ट टाइम में, और जो डिस्कवर तब नहीं हुआ था अभी इस करंट पीरियड में आके डिस्कवर हुआ. सो आर इंफॉर्मेशन वॉज देयर बट we made the wrong mistake was on our part in the prior period which is discovered in this current period. Some types of them are mathematical mistake in application of accounting policies, application policy को हमने गलती से लगाया, misinterpretation of facts,
इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स को गलती से इंटरप्रेट किए हैं फ्रॉड से, ओवरसाइट से, ठीक है। सो इसी के लिए वो प्रायर पीरियड एरर्स अकर हुए थे जो अभी डिस्कवर किए गए इस करंट पीरियड में। तो इसको करेक्टेड कैसे होगा? रेट्रोस्पेक्टिव अनलेस इम्प्रैक्टिबल। इसका भी सेम चेंज एज अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज में जैसे थे, करेक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। सेकेंड, रीस्टेट प्रायर पीरियड कंपैरेटिव अमाउंट्स को भी कंपैरेटिव अमाउंट्स है उनको रीस्टेट करना पड़ेगा हमें बेसिंग ऑन द इंफॉर्मेशन एंड द करेक्शन वी डिड दिस ईयर। एडजस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स इफ नीडेड। जो ओपनिंग बैलेंस है रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट का, उस पर हम चेंजेस लाएंगे तो उसको हमें एडजस्ट करने हैं। कैसे करने हैं? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, राइट। सो दीज आर द effects which are going to have when prior period errors have been discovered in this current period, okay। अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ पॉलिसी कोई चेंज हुआ उसका क्या इफेक्ट देना पड़ेगा हमें? रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये डिस्टिंक्शन है। एस्टिमेट का कोई चेंज हुआ है, एजम्पशन दैट इज एस्टिमेट, प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट। एरर मिस्टेक हुआ है लास्ट ईयर में या उसके आगे साल में मिस स्टेटमेंट के वजह से, तो दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव। सो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज और प्रायर पीरियड एरर्स के लिए हम देंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और सिर्फ एस्टिमेशन जो हम करते हैं एजम्पशन बेस्ड, उसको हम देंगे प्रॉस्पेक्टिव चेंज, दैट फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज एंड फर्दर पीरियड। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर further period, then only in this present period has to be given, and the fact that the further period is impracticable to be given, future cannot be estimated. In a particular case, the fact has to be disclosed in the financial statements. Disclosure requirements: detailed disclosure of change in policies and estimates. क्या पॉलिसी चेंज हुआ है, कितना एस्टिमेट चेंज हुआ, कौन से इन्फॉर्मेशन बेसिस में, सब डिटेल देना है। नेचर ऑफ एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स, प्रायर पीरियड के जो एरर्स हमने किए थे उसका क्या नेचर था और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस पे, अभी तक चेंज करने में क्या चेंज आएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकेबल, अगर रेट्रोस्पेक्टिव देना इम्प्रैक्टिकेबल है तो उसको हमें वहाँ पे मेंशन करना है द रीज़न, राइट। लिमिटेशंस ऑन रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। अब हम रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कर रहे हैं, आगे से ले रहे हैं, कोई भी बात प्री हिस्टोरिक पीरियड को चेंज कर रहे हैं, ठीक, हिस्टोरिक पीरियड को चेंज कर रहे हैं, तब क्या है? व्हेन इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमिन द स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ एन एरर ऑन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर वन और मोर पीरियड्स प्रेजेंटेड देन, तब हमने जो किए थे उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इन दैट केस द एंटिटी शैल रीस्टेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स, the liabilities and the equity for the earliest time period for which the retrospective restatement making is practicable। मैंने जैसे एग्जांपल दिया 2010 से बिजनेस स्टार्ट हुए थे 20 तक, लेकिन उस टाइम में 10 to 20 तक उनके पास वो जो इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर द कंपनी टू मेक चेंजेस ऑन दोज 10 years अकाउंट्स, राइट। सो वो इम्प्रैक्टिकल, तो अभी क्या करेगा, जिस साल से वो दे सकेगा, कब से दे सक रहा है, 2020 से दे सक रहा है। सो अर्लीस्ट टाइम पीरियड फॉर विच रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट making is practicable, तब से करेगा। These are one of the limitations. Second, similarly, when it is important to determine the cumulative effect at the beginning of the current period के beginning में क्या cumulative effect होगा आगे का कोई mistake के लिए, right? An error on all prior periods at the time, the entity shall restate the comparative information to correct the error prospectively from the earliest date practicable, ठीक है। अभी कोई प्रायर पीरियड एरर के लिए क्या मिस्टेक, हम इसको क्यूमुलेटिव इफेक्ट इन द करंट पीरियड में दिखा नहीं सक रहे हैं, इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेगा एंटिटी? रीस्टेट द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन टू करेक्ट, उसको ठीक करेंगे, करेक्शन करेंगे एरर प्रॉस्पेक्टिवली फ्रॉम द अर्लीस्ट डेट प्रैक्टिकल, जब से पॉसिबल है एरर को चेंज करना तब से हम एरर को चेंज करके दिखाएंगे जिस तरह से प्रैक्टिकल। दिस इज द लिमिटेशंस टू रेट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट। हम जो स्टेटमेंट करते हैं फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड एरर्स के लिए, तो वो एक क्या है कि लास्ट ईयर्स के हम ला नहीं सक रहे, इम्प्रैक्टिकल डू। सो इन दैट केस जब से हम कर सक रहे चेंज लाएंगे इन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड द इक्विटी, राइट। एंड व्हेन इट इज़ अभी करंट पीरियड में क्या इफेक्ट लाएंगे ड्यू टू प्रायर पीरियड्स के इफेक्ट के लिए, प्रायर पीरियड में कोई मिस्टेक्स हुआ है तो उसका हम एक्यूमुलेटिव इफेक्ट ला नहीं सक रहे, दिखा नहीं सक रहे, इम्प्रैक्टिकेबल है कम्प्लीटली। क्या करेंगे? जब से पॉसिबल है तब से दिखाएंगे, रीस्टेटमेंट करेंगे फ्रॉम द टाइम इट इज़ अर्लीस्ट डेट प्रैक्टिकेबल, जब से अर्लीस्ट डेट प्रैक्टिकेबल है तब से हम करेंगे। सो दीज आर द लिमिटेशंस, ओके, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट में। चेंज फ्रॉम कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन मॉडल, क्या चेंज होगा? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई अगर दिया कि एक कोई कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा है, तो दैट इज चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी।
चेंज इन डिप्रिशिएशन मेथड, एस्टिमेट चेंज, ऑब्वियसली डिप्रिशिएशन मेथड कोई फॉलो कर रहा था स्ट्रेट लाइन मेथड से, अभी चलिए वेटेड एवरेज मेथड में, तो ऑब्वियसली चेंज इन डिप्रिशिएशन मेथड इज एन एस्टिमेट चेंज. ओमिशन ऑफ एक्सपेंस, प्रायर पीरियड एरर, कोई भी एक्सपेंस था उसको इन्फॉर्मेशन तब अवेलेबल था बट हमने उसको ओवरलुक किया, फ्रॉडली नहीं लाए या वट एवर द केस में बी, इन दैट केस इट इज़ अ प्रायर पीरियड एरर. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स. ICA के गाइडलाइंस क्या है, प्रैक्टिकल पॉइंट्स, यूज जजमेंट टू क्लासिफाई चेंज करेक्टली. ओके, रिव्यू डिस्क्लोजर इन लाइट ऑफ इंड AS 1 रिक्वायरमेंट्स. इंड AS 1 हम जानते हैं, इंड AS, what does इंड AS 1 says about the proper fit disclosure of the financial statements, right? What this is required. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट में यूज करो, use your judgment to classify change correctly. Second, review disclosure in light of Ind AS 1. Ensure that consistently you are following with the previous periods unless justified. Ensure consistent with previous periods. Previous periods में भी वही follow किए, अभी भी कर रहे हैं, unless वो justified है. Unless it justified means what does it mean कि if it is not impracticable, if it is not practicable to form earlier periods से consistent follow करना, तब अलग बात है. Otherwise you have to see that it has been consistently followed for the similar transactions. ठीक है. Then summary journal entries, change in estimate, कोई भी estimate हुआ है, क्या है change in estimate, debit, expense, provision by asset, उसको हम लाएंगे कहाँ पे, we will bring it to the expense. एक्सपेंस में चेंज इन एस्टिमेट के लिए एक्सपेंस बड़ा है, प्रोविजन बाय एसेट को कम आना है. ठीक. प्रायर पीरियड एरर्स, कोई प्रायर पीरियड एरर था उसके लिए क्या देंगे, रिटेन अर्निंग्स टू एक्सपेंस द एसेट, जिसको हम सेट ऑफ करेंगे. पॉलिसी चेंज, कोई पॉलिसी चेंज के लिए इट विल बी डन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द केस. डेबिट होगा या क्रेडिट होगा रिटेन अर्निंग्स, एंड अफेक्टेड अकाउंट्स जिसमें हमें चेंज लाने हैं उसको डेबिट बाय क्रेडिट एज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर case of the transaction. So change in estimate goes through the debiting the expense and provision or asset. अगर हम केस क्रिएट करेंगे, प्रायर पीरियड के लिए रिटेन अर्निंग्स से हम सेट ऑफ करेंगे एक्सपेंस को, राइट. एंड पॉलिसी चेंज के लिए एज पर द केस रिक्वायर्स डेबिट और क्रेडिट विद द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट विद द अफेक्टेड अकाउंट्स. Let's see, change in accounting estimate. Definitely AS में क्या बोल रहा है, a change in account estimate occurs when there is an adjustment to the carrying amount of an asset or liability due to reinstatement of the present status and expected future benefits obligations. This does not involve correction of an error. कोई भी error नहीं है, सिर्फ estimate change हो गया. ठीक है. Change in estimate occurs when there is an adjustment in the carrying amount of an asset. Asset का जो carrying amount था, बा liability का जो carrying amount था, उसको change कर दिया. क्यों? हमने present status में accounting policy को change किया, तो उसके लिए हमारा जो estimate को भी change करना है, circumstances change हो गए जिसके बेसिस में हम information बना रहे थे, तो हमें estimation को change करना पड़ा. इसमें कोई हम effect नहीं दे रहे हैं, कोई भी error हुआ इसके लिए. It is only reassessment of the present status. Present status को हम reassess करेंगे and expect future benefits obligation, वहाँ से क्या आएगा उसको तैयार करेंगे. चेंज applied prospectively. How it is applied? Prospect from the date of change to future periods. Example हम ले लेते हैं, useful life of machinery changed. Machinery हमने खरीदा था, उसका useful life change हो गया. Company bought machinery for 10 lakhs on 1st of April 2022, right? 22 में 1st April को एक 10 lakhs का मशीनरी खरीदा. ओरिजिनल यूजफुल लाइफ 10 years, नो स्क्रैप वैल्यू. 10 years में हम देंगे, नो स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो वी आर गिविंग 10% का बेसिस में हम उसको मशीनरी को देंगे, राइट. डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है. सो ऑन 1st April 2024 आफ्टर 2 years, 24 ये स्टार्ट हुआ 22 में, 2 साल के बाद में देखा गया द एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 6 years. पहले हमने एस्टिमेट किया 10 years होंगे, लेकिन 10 years होने से अभी कितने बाकी रहते हैं हमारे, 8 साल बाकी रहते हैं 2 साल के बाद, बट अभी हमारे पास 6 साल उसका लाइफ बाकी है. सो देर इज चेंज इन द लाइफ ऑफ द मशीनरीज, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीनरी चेंज फ्रॉम 10 years to 8 years. ठीक है. तो अभी 2 साल ऑलरेडी बीत गए हैं, तो कितने बाकी है, 6 साल. तो अब 6 साल के हमें डेप्रिसिएशन देने पड़ेंगे, नॉट फॉर 8 years. ओके. 2 years have already we have given the depreciation on straight line basis, right, on the machinery of 10 lakhs. Let's see, depreciation for first 2 years, no entry change, already booked. Annual depreciation initially 10 lakhs, okay, divide by 10, so 1 lakh करके हमारा depreciation हुआ. कितने साल के लिए, 2023 के लिए होगा, 2024 2 साल के लिए हमने depreciation दिया. क्या, depreciation account debit to accumulated depreciation. तो 1 lakh rupees we have given the depreciation for the 2 years. So 1 lakh, 2 lakhs, right.
सेकेंड केस क्या, न्यू डिप्रिशिएशन फ्रॉम 24-25 होगा, तो अब 1 लाख तो हम नहीं देंगे क्योंकि उसका एक्सपेक्टेड लाइफ कम गया, तो हमारे पास एसेट का वैल्यू क्या पड़ा हुआ है, द एसेट वैल्यू इज 8 lakhs. हाउ 10 lakhs था, उससे 2 लाख का डिप्रेशन हमने दे दिया, तो नाउ वी हैव द एसेट वैल्यू इज 8 lakhs. लेकिन उसके रिमेनिंग लाइफ तो 8 years और बाकी नहीं है, बिकॉज एस्टिमेशन ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीन हैज चेंज फ्रॉम 8 to 6 years. ओके, सो अभी 6 साल बाकी है हमारे पास, रिमेनिंग लाइफ क्या है, 6 साल. अब 6 साल में हम कैसे डिप्रेशन देंगे, जो बाकी है हमारे पास जो एसेट का वैल्यू डिवाइड बाय 6 years, सो वी गेट 133,333 per annum. ओके, सो यू से द ड्यू टू द चेंज इन द एस्टिमेट ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट द डिप्रेशन अमाउंट चेंज. इफेक्टिव आप देख सकते हो कि हमारा डिप्रेशन अमाउंट बढ़ गया, राइट. जनरल एंट्री डिप्रेशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन अकाउंट. प्रोस्पेक्टिव नो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. Prospectively हम देंगे from 24-25 onwards to the end of the life of the asset. Change in accounting policy. Definition क्या बोल रहा है, a change in accounting policy occurs when there is a switch from one GAAP compliant principle to another. GAAP में generally accepted accounting principles, उसके बेसिस में एक अकाउंटिंग पॉलिसी से हम डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में जा रहे हैं, उसको ही बोला जाए अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज. इफेक्ट क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली अनलेस इम्प्रैक्टिबल रिक्वायर्स एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग रिजर्व्स. आगे के जो रिजर्व्स है उनको चेंजेस करने हैं. चेंजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड. इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड मतलब अर्लियर पॉलिसी था फीफो मेथड फॉलो करना, अभी न्यू पॉलिसी हो गया वेटेड एवरेज. ओके, चेंज बेटर रिफ्लेक्ट्स इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो. क्यों हम लिए हैं, ये बेटर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इन्वेंट्री का कॉस्ट फ्लो को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने न्यू पॉलिसी वेटेड एवरेज मेथड में लिया है. ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 April अंडर फीफो वाज 5 lakhs, अंडर वेटेड एवरेज वुड हैव बीन 4,80,000. ठीक है, 4,80,000 होगा. तो ओवर स्टेटमेंट इन पास्ट ईयर्स कितने ओवर स्टेटमेंट हमने किए हैं, 20,000 को ओवर स्टेटमेंट किए. 5 लाख होना चाहिए था, लेकिन अभी हमने देखा कि वो अगर वेटेड एवरेज में लेंगे तो 4,80,000 होगा. तो कितना ओवर स्टेटमेंट किया गया है, 20,000 रुपीज़. ओके, सो इस 20,000 रुपीज़ को हमें एडजस्ट करने हैं. जर्नल एंट्री करना क्या पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स इन द ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स. ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स जो थे उसमें क्या देंगे, रिटेन अर्निंग्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट. 20,000 को हमने सेट ऑफ कर दिया, जो हमने एक्सेस दिखा दिया था. ओके, सो कंपेरेटिव फिगर्स फॉर प्रीवियस ईयर्स रीस्टेटेड. आगे के जो फिगर्स से रीस्टेट करना पड़ेगा. नोट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना पड़ेगा कि 20,000 रुपये हमने ओवरस्टेट किया था, उसको हम अभी सेट ऑफ कर रहे हैं. Prior period errors, omissions or misstatements from prior period periods caused by failure to use reliable information that was available when the financial statements were authorized. Financial statements जब authorized में बनाया जा रहा था तब वो available information था, but हमने उसको misstate किया है या हमने उसको omit किया, right? तो correct retrospectively by restating the comparative figures और ओपनिंग बैलेंसेस. आगे से जो भी आया है उसको भी हमें सेट ऑफ करने हैं, तो उसी के बेसिस से हम इसको retrospective effect देंगे earlier years as well as this year and the future if the future is not impracticable, right? So example ले लेते हैं, expense missed in last year's accounts. Expense था, it was available. Okay, audit for financial year 2024 reveals that electricity expense of rupees 15,000 was present, but it has not been stated there. Relating to March 2023, financial year 22-23 was not recorded. Financial statements for 22-23 have already been approved. Financial statements approve हो गए हैं और मार्च में जो 22-23 के जो एक्सपेंस है उसको लाया ही नहीं गया, एक्सपेंस तब था ऑलरेडी. ओके, जर्नल एंट्री क्या होगा, एडजस्ट द ओपनिंग एंड रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स से हम एडजस्ट करेंगे. रिटेन अर्निंग्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस वाज देयर, वी हैव नॉट स्टेटेड, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अकाउंट वो हम क्रेडिट करेंगे. रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, नो इफेक्ट ऑन करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस. अभी इसका करंट ईयर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसका एडजस्टमेंट हमने रिटेन अर्निंग्स से ऑलरेडी सेट ऑफ कर दिया लास्ट ईयर में, राइट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू वॉन्ट टू सी more such videos on Ind AS and MCQs, so please like and subscribe. Thank you.